Welcome students, welcome to chapter 2 of class 6. The chapter name of the chapter name is components of food. So let us discuss about the components of food. In class 5 also we have studied about what components of food, like what is nutrition. So nutrition, nutrients. What is nutrients? Chapter number 2, components of food. So before starting components of food, let us understand about nutrients. What do you understand by the word nutrients? So the components of food that are necessary for our growth and to remain healthy are known as nutrients. What is nutrients? The components of food that are required for our body to stay healthy and for our proper growth. So this is known as nutrients. So let us understand what are the components of foods. So take a snapshot and screenshot. You should take a screenshot and note down. So components of food includes there are how many components of food? There are 5 components of food. They are: number 1, carbohydrates; number 2, fats; number 3, proteins; number 4, minerals; number 5, vitamins. So these are the 5 components of food that are necessary for our proper growth and to remain healthy. So let us understand these components of food one by one. So what are carbohydrates? What is carbohydrate? Or you can say, what is carbohydrate? Carbohydrate. Let us understand about carbohydrate. Carbohydrate is the substance. Carbohydrate is a substance that gives us energy to our body. तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड कराता है. तो द सब्सटेंस ऑफ फूड, द कार्बोहाइड्रेट, they are called energy giving food. For example, rice, potato, etc. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है. नेक्स्ट, फैट्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फैट्स? नंबर 2, फैट्स. They are also energy giving food. For example, butter, they are also known as energy giving food, but they provide more energy
than carbohydrates. For example, butter, ghee, paneer, etc. Next, number 3 is proteins. Number 3 is proteins. Before moving to proteins, let us understand about fats once more. They are also known as energy giving food. They give us more energy to do work than carbohydrates. So we all need energy to do work. In anything that we eat, that it may be carbohydrate, it may be fat, it may be proteins, it may be minerals, it may be vitamins. So if we eat carbohydrate, they give us energy. If we eat fats, they also give us energy, but in more quantity than carbohydrates. Now let us understand about protein. They are called what? They are called energy giving food. For example, fish, meat, etc. ओके, अंडरस्टूड? तो क्या होता है प्रोटीन में? सपोज हम लोग को एक चोट लग जाता है बॉडी में, तो उसको रिपेयर करना होता है. बॉडी को तो रिपेयर हील होना पड़ेगा. सपोज हाथ में हमारा कट गया, तो उसको तो फिर से रिपेयर होना पड़ेगा. तो वो कौन करेगा रिपेयर? प्रोटीन्स करेगा. प्रोटीन्स फिर से हम लोग का जो मसल, जो स्किन फट गया है या फिर जो स्किन में स्क्रैच आया है, उसको फिर से रिप्लेस करेगा. कौन? प्रोटीन्स. ओके, अंडरस्टूड? सो एग्जाम्पल, फिश और मीट खाने से या फिर पनीर खाने से भी प्रोटीन्स मिलता है. पनीर एटसेट्रा. ठीक है, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, number 4, vitamins. Take a screenshot and note it down because they are very important for exam. Next is vitamin. Vitamins, they helps body function efficiently. विटामिन क्या करता है? बॉडी को इफिशिएंटली फंक्शनिंग में हेल्प करता है. दे हेल्प्स आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. ओके, सो विटामिन का बहुत सारा पार्ट्स है. सो हम लोग देखते हैं विटामिन क्या है. विटामिन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स. विटामिन आर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स. नंबर 1, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नंबर 2, या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बाद में चाहिए, लेकिन फिलहाल विटामिन बी से हम लोग काम चलाएगा. ठीक है, इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, B12 भी बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज विटामिन सी नंबर 3, विटामिन सी. नंबर 4, विटामिन डी. नंबर 5, विटामिन ई. नेक्स्ट इज नंबर 6, विटामिन के. तो अभी मैं विटामिन का ये सोर्स क्या है वो बताऊंगा आप लोगों को. आई विल टेल द सोर्सेस ऑफ विटामिन, बट आई विल नॉट टेल द लास्ट 2. यू विल search by yourself in internet
wherever you find, in textbook, wherever you find, you will find these two in easily. You can find, if you read properly, you can find these two very easily. तो आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तो अगर प्रॉपरली सर्च किया तो मिल भी जाएगा इजीली. तो विटामिन ए का सोर्स क्या है? मिल्क, फिश ऑयल. मिल्क और फिश ऑयल, दिस आर द टू सोर्सेस. ये सोर्सेस आपको याद रखना जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में आएगा ही आएगा, दैट्स फॉर श्योर, 200% गारंटेड. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, liver, white and rice. Liver, wheat and rice. Vitamin C, विटामिन सी में आएगा टोमेटो और ऑरेंज. टोमेटो और ऑरेंज. विटामिन डी में आएगा आपका फिश, लीवर, एग. फिश, लीवर, एग एटसेट्रा. और ये दोनों आपको होमवर्क दे रहा हूँ. अगर नहीं आता है तो आप हमको फेसबुक व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो. मेरा नंबर है 7002. यू टेक्स्ट मी ऑन माई नंबर 7002 809954. दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर. आपको अगर समझ में ना आए ये दो, या फिर कुछ भी समझ में ना आए, हमको टेक्स्ट करो. आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट. ओके, सो नेक्स्ट नंबर 5 पॉइंट इज मिनरल्स. द 5th point is minerals, or the 5th component of food is minerals. मिनरल्स क्या है और क्यों चाहिए हम लोग को बॉडी? Minerals are the substances that are naturally present in the earth and plants absorb it. They give resisting power to our body to fight against diseases. क्या minerals क्या है? They are the substances that are naturally obtained in the earth. Okay? और plants उसे क्या करते हैं? Absorb करता है. और minerals खाने से हमको क्या होता है? Resisting power होता है. जैसे हमारा immune system, फिलहाल तो कोविड-19 का सीजन चल रहा है, तो कोविड-19 किसको नहीं होता है? जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो. तो आप अगर मिनरल्स लोगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, और स्ट्रांग रहेगा तो कोविड-19 आपके साथ मतलब हार जाएगा, वो आपके अंदर एंटर भी नहीं कर पाएगा. अगर एंटर किया भी तब भी आप में कुछ भी असर नहीं होगा. ठीक है. मिनरल्स आर द सब्सटेंस that are naturally present in the earth and plants absorbs it. They give resisting power. They give function. क्या है इसका function? They give resisting power to our body to fight against diseases. तो डिजीजेस से हमको क्या मिलता है? प्रोटेक्शन, लाइक मैरी कॉम. ओके, अंडरस्टूड. तो आई विल गिव यू 5 क्वेश्चंस एज होमवर्क नाउ, और या फिर लेटेस्ट डिस्कस बोल सकते हैं हम इसको. नेम सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन. नेम सम sources of iodine.
आयोडीन। तो आयोडीन से क्या होता है, आयोडीन अगर लैक हुआ तो क्या होता है, गले में फूलता है, उसको बोलते हैं गॉइटर। ओके, गॉइटर, GOITRE। तो नेम सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन, जिंजर एंड फिश। क्या एग्जांपल होगा, जिंजर एंड फिश, एटसेट्रा भी लिख सकते हो, और भी हो सकता है, जिंजर, फिश, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस। नेम टू सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस, PHOS, PHORUS। आंसर क्या होगा इसका, मिल्क, बनाना, एटसेट्रा। मिल्क, बनाना, एटसेट्रा, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, आप लोग सर्च करोगे गूगल में तो बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, नेम टू सोर्सेस ऑफ आयरन। नेम टू सोर्सेस ऑफ आयरन, क्या होगा आंसर, एप्पल, पपाया एंड लीवर। लीवर मतलब क्या है, वो जो मीट में मिलता है लीवर, वो होता है। ठीक है, अपना लीवर नहीं, खुद का लीवर नहीं, वो एनिमल का लीवर खाया जाता है, तभी जाके बनेगा ये आयोडीन, आयरन मिलेगा। नेक्स्ट, नेम टू सोर्सेस ऑफ मिनरल्स। नेम टू सोर्सेस ऑफ मिनरल्स, क्या होगा आंसर मिनरल्स का, मिल्क एंड egg. I hope you all have understood this. So note it down, take a screenshot and note it down. Okay. अभी हम लास्ट टॉपिक आज के लिए करेंगे, वो होगा बैलेंस्ड डाइट। What is balanced diet? What do you understand by the word balanced diet? बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है, जो डाइट जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। द डाइट दैट कंटेन्स proper amount of mineral, carbohydrates, fats, minerals, proteins and vitamins, इसे क्या कहा जाता है, बैलेंस डाइट। सच डाइट is known as balanced diet. Okay, I hope you all have understood this much. अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमको मैसेज टेक्स्ट करो, अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था पहले और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।